Hello everyone, welcome to another video where I'm going to explain tenses in simple language. Okay, तो tense का मतलब क्या है? Tense shows time of an action, be it present, past or future. Okay, altogether there are 12 tenses, 3 main tenses and each tense is divided into 4 subdivisions. ठीक है, subdivisions बहुत easy है remember करने में क्योंकि सब टेंस का सेम नाम है सब डिविजन्स का, दैट इज सिंपल और इंडेफिनिट, सेकंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. दिस इज कॉमन फॉर all the tenses. Okay, let's begin. First, let's see present tenses. First is simple present tense. Now simple present tense shows habit, routine, fact, universal truth. Okay, and what is the structure? Structure is we write subject first and then V1, and along with that if we add S or ES. Okay, if the subject is third person singular number, then with verb we have to add either S or ES depending on the verb. और अगर subject plural है so we don't have to add any S. So she plays and they play. Next is present continuous. Present continuous is an action happening now, right now. And what is the structure? We write the subject first. For example, she. Then we have to add helping verbs, either is, am or are. So obviously she है तो is लिखेंगे, singular है. She is, then we have to write the verb along with that ing. She is playing. And अगर subject plural है they, of course we will write I. Subject अगर I है we will write am. Okay. Next is present perfect. Present perfect is an action completed with present effect. Okay, completed action है, अगर just now हुआ है कोई काम ख़त्म तो हम लोग present perfect यूज़ करेंगे. Structure इसका क्या है? Subject, has or have और V3. V3 is past participle form of the verb. Okay, so subject अगर for example she है, इधर हम लोग को has लगाना है और have. कब लगेगा has? Has लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. कोई भी सिंगुलर नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, आदमी का नाम है, हैज़. ओके, और प्रोनाउन में देखा जाए तो ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा. बाकी सब चीज़ के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ वी विल यूज़ हैव. एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड. फिनिश का फिनिश्ड है, शी हैज़ फिनिश्ड, आई हैव डन, do, did, done. Done is the verb 3, finished is the verb 3. Okay, next present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is an action completed, action started in past and still continuing. कोई भी काम जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में अभी तक चल रहा है. लाइक आप लोग पढ़ने बैठे हो 1 घंटा पहले, अभी तक पढ़ रहे हो. ओके, तो वैसे काम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाएंगे. इसमें जैसे सब्जेक्ट हो गया शी फॉर एग्जांपल, और हम लोग को इधर क्या लगाना है? हैज़ हैव, क्योंकि परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव इज़ कंपलसरी. ओके, वही सेम रूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगेगा. क्योंकि ये कंटिन्यूअस है देन वी विल यूज़ ing विद द वर्ब. हैज़ के बाद तो हम लोग V3 यूज़ करते हैं, ing नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली. वी हैव टू राइट बिन. Been after that verb plus ing. She has been studying English. Okay, now studying English माने पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है, तो कितने घंटे तक, है ना? एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, या फिर हम लोग टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करेंगे. उसके लिए हम लोग को सिंस यूज़ करना होगा और फॉर. सिंस अगर यूज़ करो तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 7 AM. And if you are planning to show time period, then you have to use for 2 hours. Okay, so this is it for present tenses. Now we are going to see the past tense.
पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट बहुत सिंपल है. कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में ख़त्म हो गया. इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. ओके, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. सेम एज सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, यहाँ भी नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल शी, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ द बेस वर्ब फिनिश, तो आप लोग को फिनिश्ड लिखना पड़ेगा. ओके, went is the past form of V2 of go. So he went home. No use of auxiliaries or helping verb. Okay, बहुत simple है. Now past continuous. Past continuous action in progress at a past time. Present continuous माने अभी चल रहा है. Past continuous मतलब past में कोई काम चल रहा था. स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है. हम लोग को सब्जेक्ट तो लिखना ही है, क्योंकि ये पास्ट है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पास्ट में ही लिखेंगे. वॉज और वेयर, शी वॉज, देन वर्ब 3 प्लेइंग. ओके, अगर प्लूरल है देन वी विल राइट दे वेर प्लेइंग. बस हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अर्लियर ऑफ 2 पास्ट एक्शन. सपोज 2 पास्ट एक्शन हुआ है, जैसे आई reached the station before the train left. अभी आप देख सकते हो यहाँ 2 पास्ट एक्शन हुआ है. वन इज़ आई रीच्ड द स्टेशन, अनदर इज़ ट्रेन लेफ्ट. अभी हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा काम आगे हुआ है 2 कामों में से. सो जो अर्लियर हुआ है उसमें हम लोग हैड लगाएंगे. गेस इट. आई रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट. ट्रेन छोड़ने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच गई थी, तो ऑब्वियसली मैं पहुंच गई आगे. तो ये हैड, आई हैड रीच द स्टेशन हो जाएगा. ओके, सो बिफोर आफ्टर हो मतलब आपको ये सिग्नल दे रहा है कि कोई काम पहले हुआ है देन द नेक्स्ट. तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ आप लोग को पास्ट परफेक्ट लगाना है. पास्ट परफेक्ट इज़ नथिंग, वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, then had, and then verb 3. Okay, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, ongoing action before another past action. मतलब यहाँ भी 2 एक्शन हुआ है, लेकिन एक एक्शन हम लोग दिखाएंगे कि वो चल रहा था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्टडिंग हिंदी for 2 hours before her teacher called. अभी देखिए इधर भी बिफोर है. ओके, लेकिन हम लोग क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग दिखाएंगे कि एक काम कुछ देर तक चल रहा था बिफोर अनदर, तो वो कुछ देर तक चल रहा था. हम लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है. ओके, बिकॉज कंटिन्यूस है तो प्रोग्रेस तो दिखाना ही है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है कि उसके आगे कितने देर तक वो काम चल रहा था. ओके, सो सब्जेक्ट हैड बीन लगेगा यहाँ. पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगता है. ओके, और कंटिन्यूस है तो बीन लगेगा मिडिल में. उसके बाद हम लोग वर्ब आईएनजी लिख पाएंगे. एंड एज इट शोज टाइम कि कब हुआ है, कितने देर तक हुआ है, सिंस और फॉर यूज़ करना होगा. ओके, we are done with past tense. Now simple future tense आ गया. Simple future is very simple, action that will happen in the future. अभी तक हुआ नहीं. ओके, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर will और shall लिखेंगे, and then verb 1, she will play. खत्म. Very easy. Next is फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस कोई भी काम जो फ्यूचर में कंटिन्यूस होगा, प्रोग्रेस में रहेगा. एक्शन इन प्रोग्रेस सच अ फ्यूचर टाइम. ओके, सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस. ध्यान से देखिए, चीज़ें बहुत इजी है, आगे भी समझाया. फ्यूचर के लिए विल, वन इज़ कनेक्टेड विद द अदर. विल कंटिन्यूस है तो फिर हम लोग को क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी. विल के बाद तो हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते जनरली, सो वी हैव टू पुट अ बी एंड देन वर्ब. will be playing. Okay, playing cricket in the evening. All right.
future perfect tense, future perfect tense action completed before a future time. कोई भी एक फ्यूचर टाइम है, जैसे आपको बोलना है कि आपका होमवर्क अभी आप कर रहे हो लेकिन 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो आई विल हैव completed the homework by 10 PM. ओके, ख़त्म हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट है. नाउ सब्जेक्ट विल हैव, क्योंकि फ्यूचर है विल, अगेन परफेक्ट के लिए हैव, और परफेक्ट हैव के बाद तो हम लोग हमेशा V3 लगाते हैं. ओके, दैट्स इट. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूअस है मतलब हम लोग टाइम पीरियड दिखाएंगे कि वो दिखाएगा, ठीक है. एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ फ्यूचर पॉइंट. Any work that will have been continuing in the future before a particular point of time, है ना. She will have been learning English for 1 hour by 8 PM. 8 बजे तक वो इंग्लिश 1 घंटे तक पढ़ रही होगी. ओके, सो सिंस एंड फॉर इज कंपल्सरी फॉर ऑल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट्स बेटर इफ यू यूज ऑल द टाइम. ओके, सो दिस इज इट. Just to remember things more easily, simple माने habit, continuous is progress, perfect generally shows completed things, and perfect continuous shows duration of time. Important tips: use V1, V2, V3 correctly. Okay, V1 means present, V2 is past, and V3 is past participle. This V3 is used after perfect tenses. Okay, V2 तो past में ही होगा, and V1 is used for present also, and future भी will और shall के बाद हम लोग V1 ही यूज़ करते हैं. ओके, since means point of time, like since yesterday, since last day, since last week, since 1991, since January last. Okay, एक point of time, particular point of time. Whereas for shows period of time or duration, for 3 hours, for 3 weeks, for 3 months. Okay. Thank you. Practice identifying time. This is, as tense is all about time. आपको time identify करना है. Okay, कौन से time में हुआ है, and you will find the tense of it. Okay, action type and time. You have to identify to master tenses. Thank you everyone for watching the video.